حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ پیش رو سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن کے فاتحہ اربعین کے موقع پر جلسہ عام بعنوان خانقاہی نظام کی ضرورت و اہمیت پر عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، جس کی زیر نگرانی شیخ شاہ محمد عبدالدین جنیدی المعروف سراج بابا سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن نے فرمائی۔ اس موقع پر بیرونی اور مقامی مشائخین اور علماء اکرام نے شرکت کر کے حضرت محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی تعلیمی اور خانقاہی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر ہندو، مسلم اور دیگر مذہب کے سیاسی، سماجی، ملی لیڈران اور مریدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آج ہم سب ہندوستان کی بڑی ہی مشہور و معروف قداور شخصیت کی بارگاہ میں، جن کی علمی اور روحانی خدمات جو 80 سالہ زندگی آپ کی گزری اور جو انہوں نے علمی اور روحانی خدمات کی، انہی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے آپ کے چہلم کے موقع پر ہم سب اکٹھا ہوئے اور سبھی علماء اور مشائخ نے یکے بعد دیگرے آج کی شب میں آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا، اور آپ کی پسند جو ان کا مین موٹیو تھا لائف کا، انہی تمام باتوں کو جن جن تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے، ان کے پیغام کو عام کیا پہنچانے کی کوشش کیا ہے، ان کے پیغام کو عام کیا۔ خانقاہوں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ خانقاہ کا ایک ہی پیغام ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ خانقاہ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرتی، وہ صرف ایک ہی آواز دیتی ہے، آؤ آؤ آؤ، تم پریشان حال ہو آ جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت ہے آ جاؤ، تمہیں سکون چاہیے تو آ جاؤ، دنیا چاہیے آ جاؤ، آخرت چاہیے تو آ جاؤ۔ مریدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے تاج الدین بابا کے بارے میں؟ اب سراج میں تمام وابستگان خانقاہ جنیدیہ کے سے بالخصوص اور بالعموم تمام اہل سنت والجماعت اور اس خانقاہ سے محبت کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ صرف نعرے لگانے سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ اصل محبت اسے کہتے ہیں کہ جس کی سے آپ محبت کرتے ہو، یعنی بابا تاج الدین کی زندگی کے کچھ حصوں کی نقل کر لو اور اس پر پوری زندگی عمل کرتے ہوئے گزار دو، تو صحیح معنوں میں یہی سب سے اچھا اظہار محبت کا طریقہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اللہ کے محبوب ولی حضرت سید شاہ حضرت شیخ شاہ تاج الدین جنیدی علیہ رحمت و رضوان کے 40ویں میں ہمیں شریک ہونے کا موقع ملا، کیونکہ حضرت تاج الدین جنیدی ایک عالمگیر شخصیت تھی جو انسانیت کا، محبت کا پیغام دیا کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے، سچائی کا راستہ دکھاتے تھے، محبت کی باتیں بتایا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کی تعلیمات سے جوڑنے کی آپ پوری زندگی کوشش کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پر الحمدللہ پورے ہندوستان میں آپ کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ لاکھوں لاکھوں لوگ آپ سے وابستہ ہیں، اور وہ لوگ آپ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانیت کے راستے پہ چلتے ہیں، اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، اچھے کردار کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آج ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی 40ویں کی فاتحہ کے موقع پر پورے ہندوستان سے آج لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اسی مجلس میں خطاب کرنے کے لیے ہمیں بھی حیدرآباد سے آنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سرکار تاج الدین جنیدی کے دعاؤں سے ہمیں ان کی نگاہ کرم سے سرفراز فرمائے۔ آپ کی اور ان کی کوئی ایک یاد جو آپ کبھی اگر یاد کرنا چاہیں تو کس طریقے سے یاد کریں گے؟ دیکھیے حضرت تاج الدین جنیدی صاحب کی جو ہمیں تعلیمات ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، رسول اللہ کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو۔ جب ہم جو ہے ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ان کی یاد تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ حضرت شیخ شاہ محمد
ताज उद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा पर कायम थी। वो जब से होश संभाले हैं इंतकाल तक भी शरीयत के कोई उसके ख़िलाफ़ अमल नहीं किया। हम बुज़ुर्गों की हालात और अहवाल किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से देखें कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आखिरी वक्त में ऐसा झुका दिया था कि लोग उन्हें मिजाज के एतबार से भी वो ज़मीन की तरह नरम थे, लेकिन कोई काम अगर है, इश्क़ रसूल का काम है, औलिया अल्लाह का काम है, तो वो सरगर्म हो जाते, आग की तरह पुरजोश हो जाते हैं। ये उनकी खूबी। और उनकी खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि वो क़िबले का बड़ा एहतराम करते थे। क़िबले की तरफ कभी पीठ उन्होंने नहीं किया। और अगर कोई ऐसे जगह बैठा है जिसके पीछे, पीठ के पीछे दीनी किताब भी है, तो उसको बोलते नहीं थे, वो खुद उठ करके आहिस्ता से जो है वो किताब हटा देते थे। ये उनका जो है मंशा और ये उनका वतीरा था। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो 3री सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जो अपनी इरशादात के ज़रिए जो बातें बताई हैं ना, वो बातें हम इनके अंदर अमली तौर पर देखते थे। और हज़रत जुनैद बगदादी के जो सिलसिले से आने वाले यहाँ बुज़ुर्ग शेख सिराजुद्दीन जुनैदी, शेख दक्कन जिसे कहा जाता है, ये ख़ुद भी अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, फाजिल, मुत्तकी, परहेज़गार थे। तो हम देखते हैं कि पिछले हमने कभी ऐसा नहीं देखा। 60-65 साल से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे अरसे में हमेशा हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते थे, किसी से नफ़रत नहीं करते थे, मोहब्बत का पैगाम देते थे। और हमेशा बात करते थे कि नमाज की ताकीद, तिलावत की ताकीद, सही माना में कुरान शरीफ पढ़ने की ताकीद, तजवीज़ से कुरान पढ़ने की ताकीद करते, अपने मुरीदों को भी, अपने मिलने जुलने वालों को भी, और हमेशा जहाँ बैठे वो फैज़ पहुँचाते थे। मैं बैंक में काम करता था। जब वहाँ से निकला बाहर स्टेशन ब्रांच से, तो हज़रत उधर से कहीं से आ रहे थे, मुलाकात हुई तो मेरे को बोले, अकबर भाई आप बैंक में हैं? बैंक में हैं? नहीं, आप यूनिवर्सिटी में रहने के काबिल है। ये दुआ की थी उन्होंने, हालांकि मेरे जहन में भी नहीं थी वो बात, लेकिन चंद ही सालों में हम देखते, 2-3 सालों में हम देखे वो कुछ आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, हम अप्लाई करे और सिलेक्शन हो गए, प्रोफेसर बन गए। ये हज़रत की दुआ है। उलमा इकराम की कदरदानी भी बहुत है, और मशाइखीन से भी बहुत ही झुक कर मिलते, आजीज़ी से मिलते, इनकिसारी से मिलते। अल्लाह ने आखिरी वक्त में उनको ऐसा बना दिया, बिल्कुल रुकू की हालत में बना दिया। लेकिन हम ताज बाबा को देखते हैं कि ये क्या है भाई, आदमी जब अलीफ खड़ा होता तो अलीफ होता है, रुकू में जाता है तो है बनता है, सजदे में जाता है तो मीम बनता है, कायदे में आता है तो दाल बनता है। तो अहमद, अल्लाह को अपनी भी इबादत पसंद है अहमद की शक्ल में। तो आशिक़ रसूल भी ऐसे थे कि कभी उन्होंने इंतकाल से पहले तक भी कोई नमाज नहीं छोड़ी, और हमेशा फरिश्तों, दूसरे आसमान के फरिश्तों की आदत बनी रही, हमेशा वो झुके रुकू में रहे। ये भी अल्लाह की पसंदीदा अमानत है। अहमद के शक्ल में इबादत भी करते थे, और अहमद की है बनकर आखिर वक्त तक गुजर गए। वो आखिर वक्त में जब हम देखते हैं, जो है बन गए थे, फिर जब इंतकाल हो गया तो पूरे अलीफ हो गए, कमर सीधी हो गई। फिर ये उनकी करामात में से, हजरत की करामात भी बहुत हैं। वज़ू करते हैं तो वो भी आप देखते रहिए, इस कदर पाकीज़ा वज़ू शायद हमने नहीं देखा। माने हजरत शेख ताजुद्दीन बाबा जुनैदी का 40वीं के लिए मैं और हमारे सीनियर लीडर एमएलसी साहब, सुशील मोदी साहब और हमारे साथी आए हैं। और यहाँ का माहौल सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम आज साहब को याद किए हैं, और उनके सहाय में भी हम आज रहना है। जो मार्गदर्शन दिए, आज वो जो उसूल छोड़ के गए, उस उसूल पे हम चलना चाहिए। कोई उनका उसूल नहीं भूलना चाहिए।
उनके जो आखिरी जर्नी में हर कौम के लोग आए हैं, कम से कम 2-2.5 लाख। और मेरा नसीब नहीं था उनका जो आखिरी जर्नी में शामिल होने के लिए। मैं दिल्ली में था, हमारा पार्लियामेंट 9 तारीख खत्म हो गई, लेकिन मेरा तबीयत एकदम बिगड़ गया था। मेरे साथी जो भी है वो पूरे यहाँ पे आकर उनके आखिरी जर्नी में जुड़े हैं। हम चाहते हैं गुलबर्गा में शांति रहे, अमन रहे, हर लोग खुशी रहे, भाईचारा रहे, कोई किसी का नजर न लगे गुलबर्गा। ये एक अच्छा मौका था जो हमको मिला है और इस कार्यक्रम में हम भी साथ शामिल हो गए हैं। उनका जो हर मजहब के लोगों के जबान से ये सुनाई देता कि वो अपना आशीर्वाद, अपना योगदान हर किसी को दिया है और उनके आशीर्वाद से, उनके जो नक्शे कदम पे हम सभी लोग चले। साथ ही साथ उनके जो मुरीद है हर जगह जो देश भर में सब जगह है। मैं अभी सुन रहा था कि आज यहाँ है, कुछ दिनों बाद हैदराबाद में है, उसके बाद में बेंगलोर में है। ये सिर्फ ये बताता है कि उनके मुरीद देश के सभी जगह से, भारत के सभी जगह से वो उनके जो तत्व है, उनके जो नीति नियम है, हम सभी लोग आगे हम पालन करें और इस देश की भलाई, सभी की भलाई उसी में है। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के चहलम के मौके पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मुरीदीन और उनके आशिकीन जमा हुए हैं। इसी तरह मैं भी शिरकत की और शिरकत करने के बाद में हम सब फैज़ पाए हैं। तो इस मुक़द्दस जगह में अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुकून की ज़िंदगी देवे और जो है सारे हिंदुस्तान के लिए भी हमने अल्लाह से दुआ मांगी, हिंदुस्तान में भाईचारगी रहे और अमन रहे और हिंदुस्तान की तरक्की हो। हज़रत आज हमको छोड़कर इस दुनिया से चल बसे हैं, मगर ये हमारा यकीन है कि उनकी रूहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। आमीन। और हमको जो है उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और मैंने देखा कि ये इतनी खूबसूरत इजलास रहा, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, बहुत सारे बुजुर्गान दीन भी आए हुए हैं। एक अजीब समा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे नेक मकासद में कामयाब फरमाए। जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक फातिहा चहलम को आया था गुलबर्गा में। बहुत पूरे मशाइख लोग हिंदुस्तान का उलमाए किराम पूरे तशरीफ रखते थे। बहुत खुशी हुआ, एक मुबारक महफिल थे। हज़रत जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीदों का एक क्राउड इधर देखने आया और दुनिया में मुसलमानों को ये एक रूहानी ताकत का सख्त ज़रूरत है। और हमारा बुजुर्गों ने हमने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता पर मुसलमान नौजवानों अगर चले तो मुसलमानों को आइंदा दिनों में परेशान नहीं रहते। मुसलमानों को बहुत बड़ा परेशान ये मॉडर्न का पीछे भाग रहे। इसलिए ऐसा जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बुजुर्गों का जो रास्ता उन्होंने दिखाए थे वो रास्ता में चलना जरूरी है। सूफिज्म और रूहानी ताकत वो मुसलमानों को आज का मौजूदा हालात में सख्त जरूरी है।